हेलो फ्रेंड्स। मेडिटेशन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आपका फिर से स्वागत है। 10th चैप्टर में आज का जो टॉपिक रहेगा रिनंसिएशन एंड डिटैचमेंट, त्याग और वैराग्य। नीड फॉर रिनंसिएशन। इट इज़ रियली वेरी स्ट्रेंज दैट people suffer so much and still they do not come to their senses but cling to all kinds of false identifications. The whole world is bound by the desire for wealth and sex. People make these the goal of their life and come to grief in the end. By identifying ourselves with our body and that of others, we get into all kind of emotional involvements and create no end of misery. Of course, there are many people who seem to thrive in on all these, as in the parable of Sri Ramakrishna, the camel eats thorny leaves and bleeds in its mouth, but goes on eating them all the same. But a spiritual aspirant cannot live like that. He has fixed for himself a higher goal and he cannot afford to be lost in worldly entanglement. He therefore begins to think deeply about renunciation and detachment. तो आज 10वें अध्याय में जो चैप्टर का नाम है रिनंसिएशन डिटैचमेंट, त्याग और वैराग्य, त्याग की आवश्यकता। ये सचमुच ही बड़ी अजीब बात है कि लोग इतने कष्ट सहते हैं और फिर भी वे अपने होश में नहीं आते, बल्कि हर तरह की झूठी पहचान से वे चिपके रहते हैं। सारा संसार धन और काम की इच्छा से बंधा हुआ है। लोग इन्हें ही अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं और अंत में दुख पाते हैं। अपने और दूसरों के शरीर से अपनी पहचान जोड़कर हम हर तरह की भावनात्मक उलझनों में पड़ जाते हैं और दुखों का कोई अंत नहीं करते। बेशक ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सब पर फलते फूलते दिखते हैं। श्री रामकृष्णा के दृष्टांत की तरह ऊंट कांटेदार पत्तियां खाता है और उसके मुंह में खून भी निकलता है, लेकिन फिर भी वह उन्हें खाता रहता है। लेकिन एक आध्यात्मिक साधक इस तरह नहीं जी सकता। उसने अपने लिए एक उच्च लक्ष्य तय कर लिया है और वह सांसारिक उलझनों में खो जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए वह त्याग और वैराग्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू कर देता है। Renunciation is the central theme of spiritual life in all religions. Renunciation of wealth and greed, of sex and lust, and of egotism. This therefore the renunciation is invariably stressed in all scriptures and by all truly spiritual men. Without renunciation, there is no spiritual life. And renunciation means not only outward renunciation but also mental renunciation. We must renounce all our clinging to our body and mind and to that of others and become truly dispassionate and non attached in every way. It is not enough if we do this with reference to only certain things and persons while trying to cling to others all the more. It is easiest to avoid certain things or people whom we don't like and call it renunciation. True renunciation is a change of attitude towards all. तो त्याग जो है सभी धर्मों में आध्यात्मिक जीवन का केंद्रीय विषय है। धन और लोभ का त्याग, काम और वासना का त्याग, अहंकार का त्याग, इस त्रिविध त्याग पर ही सभी शास्त्रों में और सभी सच्चे आध्यात्मिक व्यक्तियों द्वारा हमेशा जोर दिया जाता है। त्याग के बिना आध्यात्मिक जीवन है ही नहीं, और त्याग का अर्थ केवल बाह्य त्याग ही नहीं बल्कि मानसिक त्याग भी है। हमें अपने शरीर और मन और दूसरों के शरीर और मन से सभी प्रकार की आसक्ति का त्याग करना चाहिए तथा सभी प्रकार से वास्तव में निष्पक्ष और अनासक्त बनना चाहिए। यदि हम केवल वस्तुओं और व्यक्तियों के संदर्भ में ऐसा करते हैं जबकि दूसरों से और अधिक चिपकने का प्रयास करते हैं तो यह पर्याप्त नहीं है। कुछ ऐसी वस्तुएं या व्यक्तियों से बचना आसान है जिन्हें हम पसंद नहीं करते तथा इसे त्याग कहते हैं। सच्चा त्याग सभी के प्रति दृष्टिकोण में परिवर्तन है।
Why is renunciation necessary? Why should we practice so much dispassion and non attachment? Spiritual practice can never be successfully performed without giving up all associations with things and people which are not helpful to the aspirant. Too much worldliness is like fire. It burns the heart, it makes one callous and insensitive to spirit values. A worldly person cannot appreciate the joys of a spiritual life. The faculty of intuitions become too so dull in a worldly person that he is no longer sensitive to higher vibrations. He has no idea of spiritual truth and just goes on wallowing in the mire of his desires and passions. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि त्याग क्यों आवश्यक है और हमें इसका अभ्यास क्यों करना चाहिए। और इतना वैराग्य और अनासक्ति साधक के लिए जो भी चीज़ें और लोग सहायक नहीं हैं उनके साथ पुराने संबंधों को छोड़े बिना साधना कभी भी सफलतापूर्वक नहीं हो सकती। तो जब तक हम अपनी इच्छाओं और वासनाओं का तथा दूसरों के प्रति राग या द्वेष से आसक्ति का त्याग करने के लिए तैयार हैं तभी हम लाभ के साथ सच्चे धर्म का अभ्यास कर सकते हैं और कोई प्रगति कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा सांसारिकता आग की तरह है, यह दिल को जला देती है और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति व्यक्ति को कठोर और असंवेदनशील बना देती है। सांसारिक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के आनंद की सराहना नहीं कर सकता। सांसारिक व्यक्ति में अंतर्ज्ञान की क्षमता इतनी सुस्त हो जाती है कि वह उच्चतर तरंगों के प्रति संवेदनशील नहीं रह जाता। उसे आध्यात्मिक सत्यों का कोई पता नहीं होता और वह बस अपनी इच्छाओं और जुनून के दलदल में फंसता चला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लव एंड अटैचमेंट। Things and person whom we love draw our mind and create attachment, hatred, and aversion. Love and aversion are only overs and reverse of the same coin. Never make any mistake about this, so they come under the same category. Hatred or aversion is love or attachment turned upside down. It is not something essentially different. We must get rid of all forms of attachment and all forms of fear by becoming dispassionate and free from personal likes and dislikes. We must be kind without ever getting attachment. There should never be any personal claim on anybody or anybody's love. Nor should we allow anybody to have any personal claim on us or on our affection. We must love God alone and allow others also to do the same. Christ says, he that loved the father or mother more than me is not worthy of me. And he that loved the son or daughter more than me is not worthy of me. And there is nothing truer than that. And it is also true that he who allows any other person to love him more than the divine is not worthy of the divine and will never attain to the divine. However hard he may try, we reap only what we sow, and so long as we go on allowing all these likes and dislikes, fettering ourselves and others with the chain of so-called love, we shall remain bond slaves, bringing misery to ourselves and to others. Misery is penalty we pay for our attachment. In some cases, it comes soon, in others, late. But we all have to pay for their folly. When people love us, we feel flattered. We like being attractive to others. We like being loved by others as objects of enjoyment. But we are generally too impulsive and unreflective to know that we thereby only create troubles both of ourselves and for others and prevent our spiritual progress. We should be dignified and well guarded. We should adopt such an attitude that others do not dare to approach us in wrong way. I am telling this especially to ladies. The Western concept of chivalry has no place of spiritual life. Devotees and spiritual aspirants are all on
because we are all bound by the common cord of divine love, which is permanent. Love for one's spiritual brother is far more intense and beneficial than worldly love. Look at the relationship that existed among the disciples of Christ. Among the disciples of Sri Ramakrishna, what tender love, mutual respect, and consideration existed among them. When we as youngsters came in contact with the great disciples of Sri Ramakrishna, we too were deeply drawn by the intense but pure and unselfish love they showered upon us. Only spiritual men can have real love for others, and the so called love of worldly people is very often only refined self interest. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्यार और लगाव, जिन चीज़ों को या लोगों से हम प्यार करते हैं, हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे आसक्ति और घृणा पैदा करते हैं। प्रेम और घृणा एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस बारे में कोई गलती न करें, इसलिए वे एक ही श्रेणी में आ जाते हैं। घृणा या घृणा प्रेम या आसक्ति का उल्टा रूप है। यह कोई अलग चीज़ नहीं है और हमें आसक्ति के सभी रूपों, सभी प्रकार के भय से छुटकारा पाना चाहिए। निष्पक्ष और व्यक्तिगत पसंद नापसंद से मुक्त होना चाहिए। हमें कभी भी आसक्त हुए बिना दयालु होना चाहिए। किसी पर या किसी के प्यार पर कभी किसी की कोई व्यक्तिगत दावा नहीं करना चाहिए। न ही हमें किसी को अपने पर या हमारे स्नेह पर कोई व्यक्तिगत दावा करने देना चाहिए। हमें केवल ईश्वर से प्रेम करना चाहिए और दूसरों को भी ऐसा करने देना चाहिए। ईसा कहते हैं कि जो पिता या माता को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह मेरे योग्य नहीं है, और जो पुत्र या पुत्री को मुझसे अधिक प्रेम करता है वह भी मेरे योग्य नहीं है, और इससे अधिक सत्य कुछ भी नहीं। और यह भी सत्य है कि जो व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ईश्वर से अधिक प्रेम करने देता है वह ईश्वर के योग्य नहीं है। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता। हम वही काटते हैं जो हम बोते हैं, और जब तक इन सभी पसंद नापसंदों को अपने और दूसरों को तथाकथित प्रेम की जंजीरों में जकड़ने देते रहेंगे, तब तक बंधुआ गुलाम बने रहेंगे और अपने और दूसरों के लिए दुख लाते रहेंगे। दुख वह दंड है जो हम अपनी आसक्तियों के लिए चुकाते हैं। कुछ मामलों में ये जल्दी आता है और दूसरों में देर से, लेकिन सभी को अपनी मूर्खता की कीमत अवश्य ही चुकानी पड़ती है। जब लोग हमसे प्यार करते हैं तो हम खुश होते हैं। हम दूसरों के लिए आकर्षक होना पसंद करते हैं। हम दूसरों से प्यार पाना पसंद करते हैं। लेकिन हम आम तौर पर इतने आवेगी और अविवेकी होते हैं कि हमें ये पता ही नहीं होता कि हम ऐसा करके अपने और दूसरों के लिए परेशानी खड़ी करते हैं और अपनी आध्यात्मिक प्रगति को रोकते हैं। हमें गरिमापूर्ण और अच्छी तरह से संरक्षित होना चाहिए। हमें ऐसा रवैया अपनाना चाहिए कि दूसरे लोग हमारे पास गलत तरीके से आने की हिम्मत न करें। मैं ये बात खास तौर से ये महिलाओं से कह रहा हूँ। शिष्टता की पश्चिमी अवधारणा का आध्यात्मिक जीवन में कोई स्थान नहीं है। भक्त और आध्यात्मिक आकांक्षी हमारे अपने हैं, क्योंकि हम सभी ईश्वरीय प्रेम की एक सामान्य डोर से बंधे हैं जो स्थायी है। अपने आध्यात्मिक भाइयों के लिए प्रेम सांसारिक प्रेम से कहीं अधिक तीव्र और लाभकारी होता है। ईसा मसीह के शिष्यों और श्री रामकृष्ण के शिष्यों के बीच के रिश्ते को देखिए। उनके बीच कितना कोमल प्रेम, परस्पर सम्मान और विचारशीलता थी। जब हम युवा श्री रामकृष्ण के महान शिष्यों के संपर्क में आए, तब जाके हमें उनके द्वारा हम पर बसाए गए तीव्र और लेकिन शुद्ध और निस्वार्थ प्रेम से हम बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। केवल एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही दूसरे के प्रति सच्चा प्रेम रख सकता है। सांसारिक लोगों का तथाकथित प्रेम अक्सर केवल परिष्कृत स्वार्थ होता है, और प्रबुद्ध आत्माएं सभी लोगों से बिना किसी आसक्ति के समान प्रेम करती हैं, क्योंकि उन्हें प्रसिद्ध उपनिषद कथन की सच्चाई को उन्होंने समझ लिया है कि पति से प्रेम पति के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए किया जाता है। पत्नी से प्रेम केवल पत्नी के लिए नहीं किया जाता, परंतु अपनी आत्मा के लिए पत्नी से प्रेम किया जाता है। पुत्रों से प्रेम पुत्रों के लिए नहीं अपितु स्वयं के लिए किया जाता है।
हर किसी को हर चीज़ के लिए प्यार नहीं किया जाता, बल्कि हर चीज़ को अपने आप के लिए प्यार किया जाता है। और ज्ञानी आत्माओं का जीवन हमें सिखाता है कि त्याग और वैराग्य का अर्थ है उदासीनता या उदासीनता नहीं, उदासीनता आसक्ति नहीं है, ये स्वार्थपरता है। हमें अपने अहंकार से चिपके रहना है तो अपने शक्ति के अनुसार दूसरों की सहायता करने का प्रयास करें। अपने आप को दूसरों से आसक्त होने से बचाने के लिए सभी सावधानियां बरतनी होंगी। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो दूसरों के कल्याण के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें। यदि आप सच्चे मन से और तीव्रता से प्रार्थना करेंगे तो आप पाएंगे जिनकी आप सहायता करना चाहते हैं उन्हें सहायता अवश्य ही मिलेगी। लेकिन ये भी याद रखें कि आप दूसरों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप स्वयं को ईश्वर के निकट महसूस खुद को अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि आप स्वयं को दूसरों से आसक्त होने से नहीं रोक सकते तो बेहतर है आप उनकी सहायता न करें। बेहतर है कि आप प्रार्थना का सहारा लें। वास्तव में प्रत्येक सच्चे साधक को अपनी दैनिक साधना में दूसरों के लिए इस प्रकार की प्रार्थना को अवश्य ही शामिल कर लेना चाहिए। During the period of transition from worldly life to spiritual life, we may feel a little indifferent towards others for the time being. सांसारिक जीवन से आध्यात्मिक जीवन में संक्रमण की अवधि के दौरान हम कुछ समय के लिए दूसरों के प्रति थोड़ा उदासीन महसूस करते हैं। In order to protect ourselves, we may even cultivate an attitude of indifference, but only for a short time. If you hold to ideal of God realization, the lead a pure life, you will find after some time your old love for others returning to you in a purified and sublimed form, in which only attachment has been eliminated and replaced by intense love for God. You then love others for the sake of divine and not only any selfish purpose. This alone is true love. We should steer clear of two dangers. One is to love others with human love and falsely call it divine, and the other is to be too indifferent to even the right feelings and be negligent of one's duties. Both are harmful to spiritual growth. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि खुद को बचाने के लिए हम उदासीनता का रवैया भी विकसित कर सकते हैं, लेकिन कोई थोड़े समय के लिए ये कर सकता है। यदि आप ईश्वर प्राप्ति का आदर्श धारण करते हैं और एक शुद्ध जीवन जीते हैं तो आप कुछ समय बाद दूसरों के लिए पुराना प्यार शुद्ध और उदात्त रूप में आपके पास लौटता हुआ पाएंगे, जिसमें न केवल आसक्ति समाप्त हो गई है, उसकी जगह ईश्वर के प्रति तीव्र प्रेम आ गया है। तब आप दूसरों से ईश्वर के लिए प्रेम करते हैं, किसी स्वार्थ के लिए नहीं। यही सच्चा प्रेम है। हम दो खतरों से दूर रहना चाहिए। एक है दूसरों से मानवीय प्रेम करना और उसे झूठा ईश्वरीय प्रेम कहना, और दूसरा है सही भावनाओं के प्रति उदासीन होना और अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होना। दोनों ही आध्यात्मिक विकास के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं।